آپ حیران ہو جائیں گے یہ جان کر کہ مڈل ایسٹ میں امن ایک بار پھر ختم ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے اپنی ایئر سٹرائکس پھر سے شروع کر دی ہیں اور ان ایئر سٹرائکس کے نتیجے میں غزہ میں 26 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اور ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لٹرلی ابھی چند دن پہلے 9 اکتوبر کو ہی تو پیس ڈیل سائن ہوئی تھی، ابھی تو امن آیا تھا، اتنی جلدی امن چلا بھی گیا؟ یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، حیرانگی کی بات وہ ہے جو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ فائنلی گریٹر اسرائیل کا پلان شروع ہو گیا ہے and the worst is no one is even talking about it۔ کہانی کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ يلا يلا نو اکتوبر سن 2025 کو مڈل ایسٹ کی پیس ڈیل سائن ہوتی ہے اور تقریباً 9 اکتوبر کے آس پاس میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو میں بہت کیٹیگوریکلی میں نے آپ سے یہ کہا کہ مڈل ایسٹ میں امن قائم رہے میری خواہش ہوگی، لیکن مڈل ایسٹ کا یہ امن کتنی جلدی بے امنی میں بدلے گا I think it's just a matter of time۔ اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ 19 اکتوبر کو ایک بار پھر جھگڑا شروع ہو گیا، ایک بار پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ اس دفعہ اسرائیل نے الزام یہ لگایا کہ حماس نے رفح کے قریب ان کے ایک کمانڈ پہ اٹیک کیا ہے جس میں 2 سولجرز جان سے گئے۔ اس پر حماس کا کہنا یہ ہے کہ 2 باتیں پہلے اپنے دماغوں میں کلیئر کر لیں۔ نمبر 1، جنہوں نے اٹیک کیا ہے وہ حماس نہیں ہے، وہ ان ایفیلیٹڈ گروپس ہیں، اور دوسرا ایسے گروپ سپانسرڈ بائی اسرائیل اٹسیلف ہیں۔ اور تیسری ایک بڑی مزیدار بات حماس نے کہی ہے کہ اسرائیل آلریڈی 9 اکتوبر سے لے کر اب تک 80 وائلیشنز کر چکا ہے تاکہ یہ سیز فائر کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔ اچھا، ان تینوں پوائنٹس کے اندر جو دوسرا پوائنٹ ہے نا وہ میری نظر میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ان ایفیلیٹڈ گروپس ہیں، یہ حماس کا حصہ نہیں ہے۔ That reminds me کہ جون 2025 میں اسرائیل نے یہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہم نے غزہ کے اندر اتنے فیکشنز کریٹ کر دیے ہیں ان لوگوں کے جو حماس کو پسند نہیں کرتے، اور ان کے ہاتھ میں بندوق بھی تھما دی ہے اور ان کو لیڈرشپ پوزیشنز بھی دے دی ہیں۔ اب یہ آپس میں ہی لڑیں گے، ہم تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو پاور ویکیوم کہتے ہیں، اور یہ پاور ویکیوم کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ سٹیبلٹی کبھی نہ ہو سکے۔ آپ کی نظر سے تاریخ میں عراق کی وار گزری ہے، آپ کی نظر میں لیبیا کی خانہ جنگی گزری ہے، آپ کی نظر میں افغانستان کی سچویشن بھی گزری ہے۔ اگر آپ ان تینوں سچویشنز کو دیکھیں، جب بھی وہاں پر لیڈرشپ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی بھی لیڈرشپ بنائی نہیں جاتی ہے، لیڈرشپ کے موقع پر ویکیوم چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ مڈل ایسٹ کے پیس ڈیل کے اندر ہر چیز فیز وائز ہونی تھی، اور سب سے آخر میں کیا چیز آنی ہے کہ لیڈرشپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس نے لیڈ کرنا ہے، کہ ہم آخر میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ جب آپ یہ چیز آخر میں ڈیسائیڈ کریں گے تو پاور ویکیوم کریٹ ہوگا۔ جب پاور ویکیوم کریٹ ہوگا تب فیکشنز آپس میں لڑیں گے، جتنی خانہ جنگی ہوگی اس کا کوئی تو ہے جو فائدہ اٹھائے گا۔ اور یہ باتیں صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ باتیں خود نتن یاہو نے ایکسیپٹ کی ہیں کہ ہم نے اتنے فیکشنز کریٹ کر دیے کہ ہم پر کوئی الزام نہیں لگے گا۔ اور اسی بات کو لے کر یونائٹڈ نیشنز نے کیا کہا؟ یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ اگر تو کیا ہے تو انتہائی غیر ذمہ دارانہ کام کیا آپ نے، کیونکہ اس کا خمیازہ
उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिन तक ह्यूमैनिटेरियन एड जानी है। जब लोग आपस में लड़ेंगे तो यासिर अबू शबाब जैसे कैरेक्टर्स पैदा होंगे जो चोरियां करेंगे, अपने ग्रुप्स पैदा करेंगे, लेकिन मदद सही लोगों तक जाने नहीं देंगे। और ये अमन कितने दिन तक कायम रहना था, अब इस बात को समझना है तो इस छोटे से वाकये से समझें कि 9 अक्टूबर को पीस डील साइन होती है और 12 अक्टूबर को गजा की सरजमीन पे एक दिलखराश वाकया पेश आता है। सालेह अल जाफरवी, एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसका ताल्लुक गजा से, 28 साल का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो पूरी दुनिया को गजा की करंट सिचुएशन पे अपडेट रखे हुए है। उस जर्नलिस्ट का कत्ल कर दिया जाता है, इल्जाम लगाया जाता है हमास पे, और हमास भी ये कहता है और खुद गजा के लोग भी कहते हैं कि ये काम उन फैक्शंस का है कि जो इसराइल ने क्रिएट की है ताकि आपस में खाना जंगी रहे, एड रुक जाए, एयर स्ट्राइक्स शुरू हो जाएं और अमन कायम ना हो सके। सालेह अल जाफरवी के मर्डर को लेके सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? सबसे हैरानकुन बात यह है कि जैसे ही खबर आती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उसके चंद घंटों के अंदर अंदर मेटा उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल डिलीट कर देती है। यानी इस कदर सेंसरशिप आपने कर रखी है, इतना आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ओब्लाइज कर रखा है कि वो सच दुनिया तक ना पहुंचने दें। लेकिन यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इस फेक स्टेट को इतनी जल्दी क्या है अमन को खराब करने की, इतनी जल्दी कि दोबारा ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा करना चाहते हैं? लिटरली डेज अवे आपने पीस डील साइन की है, 2 हफ्ते नहीं गुजरे हैं और आप अपनी जबान से एक बार फिर पलट गए। इतनी जल्दी किस बात की है? अगर आप इस फेक स्टेट के इंटरनल पॉलिटिक्स को देखें तो आपको ये नजर आएगा कि उनका पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस वक्त डिवाइडेड है। आधे लोग इस फेवर में हैं कि नेतन्याहू ने हॉस्टेजेस को बाजियाब कराया तो सर्टनली तारीफ बनती है, लेकिन आधे डिवाइडेड हैं कि नेतन्याहू को अपनी करप्शन के चार्जेस को फेस करना पड़ेगा। खुद इसराइल के लॉ मेकर्स ये कहते हैं कि जब तक जंग चलती रही, जंग छिड़ी रही, तो पॉलिटिकल कवर नेतन्याहू को मिलता रहा कि उन्हें अदालत में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुल्क को यूनाइट करना है, आवाम को इकट्ठा लेके चलना है, एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करना है। लेकिन जैसे ही जंग खत्म हो गई और 9 अक्टूबर को मुज़ाकरात हो गए, पीस डील साइन हो गई, तो चाहे जितना डिले कर ले, नेतन्याहू को आखिरकार 15 अक्टूबर को कोर्ट का सामना करना पड़ा। और कोर्ट का सामना करने के बाद 4 दिन लगे, दोबारा एयर स्ट्राइक शुरू हो गए, क्योंकि करप्शन के चार्जेस नेतन्याहू फेस नहीं करना चाहता। क्योंकि ये जो चार्जेस हैं कि छोटे चार्जेस नहीं हैं, और इन चार्जेस की तफसीलात में अगर आपने जाना हो तो बीबी फाइल्स को एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। इतने बड़े चार्जेस हैं कि पूरा पॉलिटिकल करियर डूब जाएगा, चार्जेस से बाहर नहीं आ सकेगा। तो अब आपको यह समझ में आता है कि इसराइल को अमन खत्म करने की इतनी जल्दी क्या है। अब यहां पर एक और सिचुएशन पैदा हो चुकी है, और वो सिचुएशन ये है कि ग्रेटर इसराइल का प्लान नाफिजुल अमल हो रहा है और दुनिया भर का मुसलमान या तो बेखबर है या गूंगा होकर बैठा है। अब ये कहानी क्या है, आइए समझते हैं। नेटफ्लिक्स की सीरीज द स्पाई अगर आपकी नजर से गुजरी हो तो आपको कुछ तो क्लैरिटी मिल गई है कि किस तरह एस्पेनाज किया जाता है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री को भी क्लियर कर लेते हैं। 1967 में 1967 में इसराइल ने गोलान हाइट्स के इलाके पर कब्जा किया और ये कब्जा आज तक जारी है। इसकी कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं है, लेकिन काबिज के पास इलाका तो मौजूद है। फिर दिसंबर 2024 में बशार अल असद की रिजीम खत्म हो जाती है और रिजीम के खत्म होते ही इसराइल को मौका मिल जाता है और इसराइल इस मौके से भरपूर फायदा उठाता है। इस साल के आगाज में गोलान हाइट्स से आगे बफर जोन के इलाकों के ऊपर भी इसराइल कब्जा कर लेता है। इसराइल के एक मिनिस्टर ने कुछ महीनों पहले कहा था, जब उनसे ये पूछा गया कि आपने ये जो कब्जा कर रखा है बफर जोन पे, आपका क्या इरादा है, क्या आप यहां पर कब तक मौजूद रहेंगे? उसके अल्फाज पता है क्या थे? उसके अल्फाज थे फॉर अनलिमिटेड टाइम। हम तो अब यहां आ चुके हैं, अब हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। और रिसेंटली इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर क्या कहता है कि हम इससे आगे माउंट हरमोन के ऊपर
अपनी बेस बनाएंगे, एक आउटपोस्ट बनाएंगे जहां से हम चीजों को कंट्रोल करेंगे। अब माउंट हर्मोन का जिक्र मैंने बुक ऑफ इनॉक के वीडियो में तफसील के साथ किया है, जहां पर कहते हैं कि 200 फॉलन डीमंस आए थे। यानी अगर वो बात सच्ची है तो तब भी डीमंस के कंट्रोल में था और अब भी डीमंस के ही कंट्रोल में है। और अगर माउंट हर्मोन के ऊपर आउटपोस्ट बन जाती है तो और ग्रेटर इजराइल की मिसाल आपको क्या चाहिए? नेतन्याहू खुद यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर इसका नक्शा आपको दिखा चुका है। और अब जरा नजर डालें इजराइल के झंडे की तरफ। जो स्टार ऑफ डेविड है उसके हवाले से मैं तफसील से बात कर चुका हूं, लेकिन ये जो दो ब्लू लाइंस आपको नजर आती हैं, यानी नील और फरात के दरमियान जितनी जगह मौजूद होगी वहां पर ग्रेटर इजराइल बनेगा। तो ये आउटपोस्ट बनने के बाद आपको क्या लगता है, ग्रेटर इजराइल पर काम होना शुरू नहीं हो गया? अगर आप शुतुरमुर्ग की तरह मट्टी में सर डालकर देखना ना चाहें तो यह आपका अपना कसूर है, पर ग्रेटर इजराइल पर काम होना शुरू हो गया। एंड ऑल ऑफ दिस किस आड़ में? सब का सब मिडिल ईस्ट की पीस डील की आड़ में। आज दुनिया भर का मुसलमान खामोश बैठा है और ग्रेटर इजराइल का प्लान तेजी से नाफिजुल अमल है। आज मुसलमान की यह हालत है क्यों? क्या उसके पास दीन का इल्म नहीं है, या वो अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में सब कुछ छोड़ बैठा है, या वो चारों तरफ से गद्दारों में घिरा हुआ है? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं।